Okay. So the next method is that is the preparation of alkene from alkyl halide, right? How will you prepare alkenes from alkyl halide? So we already covered the reactions and method of preparations of alkane. So from today we are going to start preparation of alkenes from alkyl halide. One method that is preparation of alkene from hydrocarbon, that is alkyne, we already covered. So in this we are going to cover the preparation of alkene from alkyl halide, कि alkyl halide से हम कैसे prepare करते हैं. So we all know the method is known as dehydrohalonation. क्या method है? That is dehydrohalonation. So this method we are using for the preparation of alkene from the alkyl halide. So this is alkyl halide. Alkyl halide means what, beta? They having one alkyl group and another they having halide group. Okay. So this is known as alkyl halide. Done? Clear है alkyl halide? Okay. So this is all about the alkyl halide. Okay. Now, when we treat alkyl halide with alcoholic KOH, we treat alkyl halide by alcoholic KOH, then the formation of alkene will be formed, right? Then the formation of alkene will be formed, and this is also known as beta elimination reaction. So I'll explain this with an example. ठीक है, ध्यान से देखो, तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं. यहां तक क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म कर दो. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलेगा एंड हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होने वाला. राइट. ओके, प्रगति ने बोला क्लियर. चलो, सो मैकेनिज्म देख लो बेटा एक बार, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है. राइट, ध्यान से देखना मैकेनिज्म. मान लो हमारे पास है, ये क्या हुआ, जैट इज मान लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे मैंने कोई X लगा दिया है. चलो यहाँ पे H मान लेता हूँ. तो दिस इज CH3, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया है, CH2, और एक हैलोजन ग्रुप लगा दिया है. यहाँ पे बाकी H या CH3 कुछ भी ले सकते हो, अब आपकी मर्जी है. जैसे ही आप इसको ट्रीट करते हो अल्कोहलिक KOH के साथ, क्या होगा? एक तो आपको साफ साफ दिख रहा है K और X निकलेगा, दैट इज KX. एंड एक दिख रहा है आपको OH, जो H लेगा, वाटर निकलेगा. तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? अल्कीन का फॉर्मेशन होता मिलेगा. मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं, यहां से आप बेटर समझ सकते हो. लेट अस अज्यूम इफ वी हैव टू क्लोरोप्रोपेन. व्हाट इज दिस? टू क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, कई लोग आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, अगर कंफ्यूज हो तो. दैट इज CH3, this is CH, here we have Cl, and this is CH3, right? And we treat this with KOH alcoholic. Remember this thing, KOH alcoholic only. Now, this carbon is called alpha carbon. Which carbon, beta? This one, because the carbon at which group is attached is called alpha carbon. ठीक है, तो जिस कार्बन से कोई भी ग्रुप अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन. इट मींस दिस इज अ बीटा कार्बन, दिस इज अगेन बीटा कार्बन. तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन और ये हो गया आपका बीटा कार्बन. सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा एंड बीटा. नाउ, जैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? वन वी हैव KCl, तो एक तो बाहर क्या एलिमिनेट होगा? KCl. नेक्स्ट वी हैव, हेयर वी हैव OH. अब एक H चाहिए, तो वो H कहां से निकलेगा? सो वो H आएगा बेटा आपका बीटा पोजीशन से. तो दोनों बीटा है, आप कहीं से भी ले लो. तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH3. तो प्रोपीन का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, so this is how will you prepare alkene from alcoholic KOH. Now is this clear to everyone? Please tell me, जल्दी बताओ, is this clear? Yes everyone, reply beta. Is this clear to everyone?
डन, गुड। नेक्स्ट देखो, यस सर, ओके बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, राइट? बिकॉज नेक्स्ट वी हैव CH3, CH2, CH, Cl, and then we have CH3. Now we treat with alcoholic KOH. क्या होने वाला है? तो जैसे अल्कोहलिक KOH के साथ आप इसको ट्रीट करोगे तो क्या होने होएगा यहाँ पे, वो आपको ध्यान से समझना है, राइट? नाउ here we have CH3, this is CH2, this is again CH, this is Cl, and this is CH3. Okay, so CH3, CH2, CHCl, and CH3. When we treat this with KOH, KOH alcoholic, what form? देखो ध्यान से, this is alpha carbon, so this is again beta carbon, दिस इज अगेन बीटा कार्बन, राइट? सो यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेगा आपको। कैसे? देखो, एक तो ये KCl निकलेगा, नो वरीज, ये तो निकलना ही है KCl। नाउ व्हाट अबाउट OH? OH यहाँ है, अब यो इस बीटा से अगर H लेता है तो क्या बनता? तो बनता CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH3, दैट इज ब्यूट टू इन। अगर वो इस वाले बीटा से अगर H लेता तो क्या बनता? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2, राइट? सो दीज टू प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। ठीक है, पहला भी बन सकता है, सेकेंड भी बन सकता है, बट ऑब्जर्व किया गया कि दिस वन इज अ मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है? मेजर। जबकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये माइनर प्रोडक्ट है। तो एक मेजर प्रोडक्ट हो गया एंड सेकेंड वन वाला क्या हो गया बेटा आपका? माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो वन इज मेजर प्रोडक्ट एंड अनदर इज माइनर प्रोडक्ट। ओके, नाउ व्हाई दिस वन इज अ मेजर प्रोडक्ट? ओके, द क्वेश्चन अराइज, व्हाई दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट? तो यहाँ पे एक रूल पढ़ेंगे बेटा हम लोग, सिरजेफ रूल। अकॉर्डिंग टू दिस सिरजेफ रूल, major product are formed by those alkene having equal number of हाइड्रोजन एटम ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो दोनों बगल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड की इधर भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इधर आप डबल बॉन्ड देखो तो वी हैव ओनली, इधर एक हाइड्रोजन, इधर दो हाइड्रोजन। और दूसरा तरीका क्या है देखने का? इस एल्कीन पे दो दो डोनर ग्रुप है, इधर से भी लगे हुए हैं, इधर से भी, सेकेंडरी। जबकि यहां से सिर्फ एक डोनर ग्रुप है, राइट? सो दिस वन इज मच मोर स्टेबल। तो दोनों तरीके हैं जिससे आप देख सकते हो। सिरजेफ रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम मेजर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय दोज एल्कीन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, सिरजेफ रूल? और ये पूरा रिएक्शन क्लियर हुआ कि यहाँ पे दो मिलेगा, मेजर एंड माइनर? टेल मी क्विकली, फटाफट। यस सर। रेस्ट ऑल, बस प्रगति नहीं बोला है, यस रेस्ट ऑल। ध्रुवी, JNB भावनगर, JNCU, टेल मी बेटा एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, डन। चलो भाई, ग्रेट। सो दो प्रोडक्ट मिला था, उसी को मैंने समझा कि ये दो प्रोडक्ट मिल रहे थे हम लोगों को, ब्यूट टू इन एंड ब्यूट वन इन। सो अगर आप ब्यूट टू इन को देखो, राइट, अगर आप ब्यूट टू इन को देखो तो हेयर वी हैव अ 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि अगर आप इसको देखो, सो दे हैव ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट? सो दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज अ माइनर प्रोडक्ट। तो ये सिर्जेफ रूल है, क्या कहता है? hydrogen atom which led to the formation of most stable alkene is removed. Okay, now क्या है हाईलाइट बीटा एलिमिनेशन का?
सो नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। दूसरा, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, कोई भी यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। And the next is order of rate of reaction is that is 3 degree alkyl halide, then comes 2 degree alkyl halide, then comes 1 degree alkyl halide. So I hope this is clear to everyone, right? एक बार कंफर्म कर दो, सबको क्लियर हो गया? चलो, now similar for the vicinal dihalide. How will you prepare for the vicinal dihalide, beta? So for the vicinal dihalide also we prepare like this, right? That is this is a vicinal di. What is vicinal dihalide? When the two halogen atom are attached to the adjacent carbon, they are called vicinal dihalide. मतलब दो एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहलाइड। नाउ जिंक मेटल इज अ गुड डीहालोजनेटिंग एजेंट, मतलब वो अच्छे से सीएल को रिमूव करने में हेल्प करता है। सो जिंक मेटल इज अ वेरी गुड डीहालोजनेटिंग एजेंट। एग्जांपल्स देखो आप, if we have 1,2-dibromoethane and when we treat with this zinc, then ethene will form, क्या बनेगा? इथीन। सो इथीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ alkenes फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आप क्लियर है क्या वॉइस? एक बार मैं कैमरा ऑफ करके देखता हूँ। नाउ माई वॉइस इज क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो। आई होप नाउ माई वॉइस इज क्लियर, राइट? यस सर। ओके बेटा, चलो। चलो, गुड। सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। तो देखते हैं कि अल्कोहल से आप एल्कीन कैसे बनाते हो, क्या तरीका रहेगा इसके प्रिपरेशन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एल्कीन को बनाते हैं हम लोग अल्कोहल की हेल्प से। तो मान लो हमारे पास ये कोई अल्कोहल दे रखा है, ठीक है, CH3CH2OH। तो ये हमारे पास किसी ने क्या दे दिया? अल्कोहल। अब इस अल्कोहल की हेल्प से हमें एल्कीन बनाना है। तो हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, उसी के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखो बेटा, तो कितने तरीके हैं। सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन इन द सेंस 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, राइट? विच रिएक्शन बेटा, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं? दैट इज डिहाइड्रेशन इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। तो ये चीज भी हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है, राइट? देखो कैसे होगा ये रिएक्शन पूरा, उसको देखो ध्यान से। तो मान लो मेरे पास कोई अल्कोहल है, लेट अस अज्यूम इफ वी हैव अल्कोहल, कि हमारे पास क्या है? अल्कोहल दे रखा है। अब इस अल्कोहल की हेल्प से हम लोगों को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखिए। तो अल्कोहल को जैसे ही ट्रीट करते हैं 443 केल्विन पे, और किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, राइट? तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कीन का। मैकेनिज्म देखो होता क्या है। सबसे पहले H2SO4, वी ऑल नो H2SO4 इज अ वेरी गुड एसिड। तो H2SO4 का काम क्या होगा? H2SO4 का बस एक सिंपल सा काम होगा बेटा, कि वो क्या करेगा? वो H प्लस देगा, राइट? वो क्या देगा? H प्लस का फॉर्मेशन देने वाला है। तो H2SO4 का काम है H प्लस को प्रोवाइड करना। तो इसने किया H प्लस को प्रोवाइड। अब हम सबको पता है कि अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है, उस OH ग्रुप में O के पास होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर के चलते ये बहुत ही अच्छा OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो दे बिहेव एज अ वेरी वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज OH ग्रुप एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ अब ये OH ग्रुप क्या करेगा? तो ये OH ग्रुप इस H को अपने पास बुला लेगा, H प्लस जो बना हुआ है, ठीक है?
तो ये H के साथ रिएक्शन करके OH2 बना लेगा, जिसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, नाउ दे आर अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब ये OH2 आसानी से निकल सकता है बिकॉज OHO पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो यहाँ पे H2O का रिमूव होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। यानी OH ग्रुप एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट एंड कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये समझ आया सबको? डन। नेक्स्ट देखो, जो स्टेबल कार्बोकटायन होगा, जो स्टेबल कार्बोकटायन होगा मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस जिसका रिमूव H प्लस इजिली कर दे, तो वहां से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिर्जेफ रूल को फॉलो करना है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। लेट अस अज्यूम इफ वी हैव इथेनॉल, क्या है हमारे पास, इथेनॉल। तो इथेनॉल से क्या होगा, OH दिख रहा है, एक H निकलेगा, H2O का एलिमिनेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, क्या बन गया, इथीन। मान लो इफ यू हैव अ प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे OH दिख रहा है, एक H निकला, तो क्या बन गया, प्रोपीन। लेट अस अज्यूम इफ वी हैव ब्यूटेन टू ऑल, तो यहाँ पे ब्यूट टू इन भी बन सकता था, ब्यूट वन इन भी बन सकता था, स्टेबल कौन होगा, ब्यूट टू इन। डन। चलिए, सो राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सभी लोग ट्राई करेंगे। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, लास्ट वाला देख लो, सेम टू सेम क्या कर रहे थे हम लोग। अब बताओ क्या होगा इसका मेजर प्रोडक्ट। राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एवरीवन, राइट इट डाउन। यस, क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, फास्ट एवरीवन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, अगेन here H2SO4 give H plus. Now here we have OH, so this act as a very good nucleophile, किसकी तरह काम कर रहा है ये, बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, राइट। नाउ अब ये OH क्या कर रहा है, इस H प्लस को एक्सेप्ट करके OH2 बनाएगा। नाउ दिस OH2 यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस CH2 पे क्या आ गया, कार्बोकेटायन। तो इस CH2 पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। नाउ विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल बेटा, तो वी ऑल नो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। So obviously this one is not much more stable. So here rearrangement takes place, right? क्या होगा इधर, रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा। सो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज वेरी वेरी लेस स्टेबल। तो ये क्या करेगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो 1 और 2 में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, तो दिस इज CH3, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज C+। नाउ दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 2 3, so this is much more stable. So 3 डिग्री कार्बोकैटायन which is much more stable. तो हमारा क्या बना रिएक्शन, अगेन जब HSO4 नेगेटिव है वो इस H के साथ करेगा रिएक्शन, H2 निकलेगा, और हम लोगों का ये फॉर्मेशन हो गया, दैट इज 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट टू इन। ठीक है, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट टू इन का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को हमें मिलेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये HSO4 नेगेटिव जो था उसने इस H को लिया, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, और यहाँ पे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट टू इन का फॉर्मेशन हो गया। डन।
टेल मी एवरीवन, क्लियर है? यस सर, अंडरस्टूड, गुड। नाउ सो फटाफट समरी देख लो एक बार। ऑल्फिन्स बोलते थे सफिक्स इन है, जैसे आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल, चेन पोजीशन और फंक्शनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। प्रिपरेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था अल्काइन से आप कर लो, अल्काइल हैलाइड से कर लो, विसिनल डाइहैलाइड, अल्कोहल, इन सब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर एल्कीन। नाउ क्विकली देखते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन कि क्या क्या प्रॉपर्टीज एल्कीन की होती है। इसको जल्दी से एक बार हम लोग देख लेते हैं, राइट। सो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात करूं, देन हम केमिकल करेंगे, तो पहले फिजिकल देख लेंगे। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में देखेंगे कुछ इसका कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसमें हम बहुत कुछ देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड करा के देखेंगे, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन देखेंगे, एडिशन ऑफ वाटर देखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड ओजोन लिसेस ऑफ एल्कीन्स को कवर करने वाले हैं, पॉलीमेराइजेशन को कवर करने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो फटाफट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर पे, तो एट रूम टेम्परेचर जो C2 से C4 वाले होते हैं, मतलब इथीन टू ब्यूटीन, दे आर गैसियस इन नेचर। सिमिलरली C5 से C18 जितने भी अल्कीन होते हैं, ये हमारे होते हैं लिक्विड। ठीक है, ये कैसे होते हैं बेटा? लिक्विड। और C19 ऑनवर्ड्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। नाउ ऑल एल्कीन्स आर कलरलेस, सारे के सारे एल्कीन्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। एंड ऑल एल्कीन्स आर ऑडियोरलेस एक्सेप्ट इथीन। इथीन हैव अ फेंट स्वीट स्मेल। तो इथीन का जो स्मेल होता है वो थोड़ा सा स्वीट स्मेल होता है। नाउ दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड तो बेटा बस, मैं चार्ज ऑन कर लूं इसका। ठीक है, चलो। So all alkenes are odorless except ethene. Ethene have a faint sweet smell. They are insoluble in water and fairly soluble in non-polar solvent like benzene and ether. Okay. So they are fairly soluble in non-polar solvent like benzene and ether. Now, if we talk about the boiling point, so boiling point increases with increase in the molecular mass. So their boiling point increases with increase in the molecular mass. जैसे जैसे molecular mass बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका boiling point भी बढ़ेगा। Now, for structural isomers की अगर आप बात करो, तो ब्रांच चेन जो होता है वो हमने एल्केन में भी पढ़ा था, राइट। कि ब्रांच चेन एल्केन शो लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू स्ट्रेट। सो हियर ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर। ठीक है, तो ब्रांच चेन आइसोमर से ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन आइसोमर का। वही रीजन है सेम पुराना वाला, बिकॉज सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैन डर वाल फोर्सेस। डन। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। ओके, सो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में, कि एल्कीन हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एल्कीन के अंदर क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। मतलब ध्यान से समझो, एल्कीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप सबको पता है इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड अनदर वी हैव पाई बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग कैसे होता है? दिस वे। ये है पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग, दैट इज साइडवेज ओवरलैपिंग।
राइट। तो पाई बॉन्ड कैसा होता है? साइडवेज ओवरलैपिंग। ओके। और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, एक हो रहा है हम लोग का पाई साइडवेज ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड जो होते हैं वे वीकली बॉन्डेड होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। सो एल्कीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, व्हाई? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स खूब होते हैं, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लूजली बाउंडेड होते हैं, इजिली अवेलेबल है। सो दे हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड alkenes एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल देयरफॉर, राइट। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं बेटा? कि मान लो लेट अस अज्यूम इफ वी हैव अ ए बी, तो ये हमारा इसका इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगा, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या करेगा? यहाँ पे अटैक कर देगा। तो मान लो कोई हमारे पास अगर आता है ऐसा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्योंकि खुद न्यूक्लियोफाइल है तो वहां पे ये अटैक कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से पूरा रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने के चांसेस बहुत सारे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। राइट। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, राइट। इस तरीके से हम केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन का बना सकते हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ पे बेटा एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, यानी ऑलवेज रिमेंबर, कोई पूछे आपसे कि एल्कीन कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, तो आप क्या बोलोगे सीधा बेटा? कि एडिशन प्रोडक्ट ये लोग शो करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन शो करेंगे? एडिशन प्रोडक्ट, यानी एडिशन रिएक्शन ये लोग शो करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की तरह। और एडिशन भी कौन सा? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, इनके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या चाहेंगे कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और उन पे अटैक करे, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन ये लोग शो करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक क्लियर हो गया? डन। ओके, दैट्स ग्रेट, राइट। सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो बेटा। यहाँ डाउट हो तो पूछो किसी को जल्दी। हम रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बस तो आपको हिंट दिया था कि ये कौन सा रिएक्शन शो करेंगे। ये खुद न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये सारी चीजें बतानी थी। तो ये क्लियर हो गया सबको? डन। चलो ग्रेट। ओके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, ओके। सो ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑल, बाय।